Now, come to our today's topic known as human heart. When you observe human heart, आपको ऑलरेडी पता है study of heart is called cardiology, and as far as heart is concerned, here in this topic we want to study location, shape, size, weight, pericardium, heart wall, and external structure. All these topics are studied under this topic called external structure of human heart. Now, when you observe heart, you call heart is a main pumping organ. You call heart is a main pumping organ of circulatory system. This is heart, which is kept inside a rib cage, or you may call it as thoracic cavity. It is reddish brown in color, always hollow, muscular organ, roughly the size of one's fist. अब डिटेल अपन जाते हैं रिगार्डिंग पोजीशन की तरफ. नाउ व्हाट डू मीन रिगार्डिंग पोजीशन? मींस एग्जैक्ट लोकेशन वेयर द हार्ट इज सिचुएटेड. अपने को स्टडी करना है हार्ट की एक्चुअल पोजीशन कहाँ है, एक्चुअल हार्ट कहाँ सिचुएटेड है. कम टू फर्स्ट पॉइंट. इट इज हॉलो मस्कुलर कोनिकल एंड पंपिंग ऑर्गन situated in mid-ventral side of the body. What do you mean by mid-ventral side? Mid-ventral side is that side in which from front side you will observe, as well as from back side also, from dorsal side also, you will observe the heart. So that you call that side as mid-ventral side of body. In the thoracic cavity, between lungs, means in between two lungs, here you will observe one lung is there, and here also one lung is there. In between these two lungs, a space is there, and that space in which this heart is located in between two lungs is called mediastinum. उस स्पेस को क्या बोला जाता है? Mediastinum. Means it is situated in the mediastinum region. Heart is situated in the mediastinum region and present slanting a little to the left. और हल्का सा लेफ्ट की तरफ में हार्ट जो है कर्व किया हुआ है, बेंड किया हुआ है. दो एंड है इसके, एक नैरो एंड है और एक ब्रॉड एंड है. ऑब्जर्व दिस हार्ट, टू एंड्स आर देयर. हियर यू विल ऑब्जर्व दिस इज ब्रॉड एंड एंड दिस इज कॉल्ड नैरो एंड. दिस नैरो एंड इज कॉल्ड अपेक्स एंड ब्रॉड एंड इज द बेस. इस ब्रॉड एंड को क्या बोला जाएगा? बेस. तो ये ब्रॉड एंड और नैरो एंड हार्ट जो है वेल लोकेटेड है. उसके डायरेक्शन में आप देखोगे अपर एंड जो है वो अप साइड में है और डाउन एंड जो है वो डाउन साइड में है. इसका तो अपेक्स ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स लोअर साइड एंड ब्रॉड एंड इज ऑलवेज प्रेजेंट टुवर्ड्स अपर साइड. दिस इज रिगार्डिंग पोजीशन ऑफ ह्यूमन हार्ट. मींस इट इज ब्रॉडर एट द अपर एंड एंड कोनिकल एट लोअर एंड, जिसको अपेक्स बोलते हैं. एंड कोनिकल एंड इज स्लाइटली टिल्टेड टू लेफ्ट साइड एंड रेस्ट अबव द डायफ्राम. और एक इसके ऊपर रेस्ट करता है डायफ्राम के ऊपर. ऑब्जर्व दिस डायफ्राम which distinguish abdomen region as well as thorax region. Abdomen और thorax को distinguish करता है. You call this layer as diaphragm, a muscular layer. This is details regarding position. Now come to shape and size of human heart. When you observe the shape and size, you will observe, already we have discussed, it is conical in shape. Approximately the size of ओन फिस्ट, बंद मुट्ठी जितनी बड़ी रहती है उतना बड़ा जो है अपना हार्ट है. एंड व्हेन यू ऑब्जर्व द मेजरमेंट, इट्स लेंथ इज 12 सेंटीमीटर इन लेंथ. लेंथ की बात करो तो लेंथ कितनी है? 12 सेंटीमीटर है. 9 सेंटीमीटर इन ब्रीथ है. और वेट की बात करो तो मेल में 300 ग्राम है हार्ट का वेट और फीमेल्स में 250 ग्राम है हार्ट का वेट. So this is details regarding the shape and size of human heart. Now come to next point. बोनी प्रोटेक्शन. किस प्रकार हार्ट के आजू बाजू वेल प्रोटेक्टेड बोनी प्रोटेक्शन है. ऑब्जर्व दिस डायग्राम. हियर यू विल ऑब्जर्व thoracic cage is observed and that thoracic cage is hollow, and in that hollow area this reddish colored pumping organ is there, and you call that reddish colored pumping organ as human heart.
In this thoracic cage, in the middle, this bone is there. This bone is called sternum. स्टर्नम के जस्ट बैक साइड में हार्ट सिचुएटेड है, ठीक है। और डॉर्सली भी एक बोन है विच यू कॉल्ड वर्टिबल कॉलम, और डॉर्सली भी क्या है, वर्टिबल कॉलम है। इसका मतलब फ्रंट साइड से, वेंट्रल साइड से और बैक साइड से, डॉर्सल साइड से हार्ट पूरी तरीके से बोन से प्रोटेक्टेड है। और साइड से अगर देखा जाए तो साइड में आप देखिए रिब केज आर अवेलेबल, दीज आर ऑल रिब केजेस विच आर 12 इन नंबर। साइड से भी रिब केज के द्वारा हार्ट को फुल प्रोटेक्शन मिला है, ठीक है। नाउ दीज आर द प्रोटेक्टिव लेयर बाय बोनी केज। Now immediate protection is given to heart, and that immediate protection is given by some special layer on heart surface. Heart की surface के ऊपर कुछ special layer है. That layer also helps to keep the heart well protected, and you call that layer as pericardium, or you may call it immediate protection, जिसको क्या बोला गया है, immediate protection by double walled membrane called pericardium. पूरा heart जो है दो लेयर से बना हुआ है, and you call that two layers as pericardium. A double layered peritoneum in which heart is enclosed is called as pericardium. ये देखिए बहुत बार एमसीक्यूज में आता है पेरिकार्डियम वर्ड, तो ध्यान रखिए डबल लेयर्ड वॉल को बोला जाता है पेरिकार्डियम। नाउ व्हिच आर दिस टू लेयर? द फर्स्ट लेयर इज कॉल्ड फाइब्रस पेरिकार्डियम एंड सेकंड लेयर इज कॉल्ड सीरस पेरिकार्डियम। ऐसी कितनी लेयर है? दो लेयर है, एक को बोला गया फाइब्रस और एक को बोला गया है सीरस। What is fibrous layer? Pericardium. Fibrous layer is the outer protective cover. Fibrous pericardium को बोला गया है. It is tough, it is inelastic, and always fibrous connective tissue. हमेशा tough है, हमेशा outer protective layer है, हमेशा inelastic रहेगी और fibrous connective tissue covering बोली जाती है. Now, serous pericardium. Serous pericardium is always inner layer, डबल लेयर्ड, फिर से टू लेयर में डिस्टिंग्विश हुई है, एंड वस्कुलराइज कवरिंग अराउंड हार्ट, और हार्ट के आजू बाजू वस्कुलराइज कवरिंग है विच प्रोवाइड सम न्यूट्रिएंट टू हार्ट, एंड दैट टू लेयर ऑफ सीरस पेरिकार्डियम आर कॉल्ड एज पैराइटल लेयर एंड विसरल लेयर. पैराइटल लेयर इज द आउटरमोस्ट लेयर एंड विसरल लेयर इज द इनर लेयर विच इज इन कॉन्टैक्ट विथ हार्ट एंड इट इज कॉल्ड एज इपिकार्डियम. और उस हार्ट की लेयर को, विसरल लेयर को, विसरल सीरस पेरिकार्डियम लेयर को क्या नाम दिया गया है? इपिकार्डियम. मींस इन बिटवीन पैराइटल एंड विसरल फोल्ड्स ऑफ पेरिकार्डियम देयर इज अ फ्लूइड, उसके बीच में एक स्पेस है, फ्लूइड है, एंड यू कॉल दैट फ्लूइड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड एंड यू कॉल दैट स्पेस एज पेरिकार्डियल स्पेस. इसका मतलब हार्ट के आजू बाजू एक स्पेस है और उस स्पेस के अंदर में फ्लूइड भरा हुआ है एंड यू कॉल दैट फ्लूइड एज पेरिकार्डियल फ्लूइड. यहाँ देखिए आप, ऑब्जर्व द डायग्राम. Here we will observe pericardial fluid is present. This is pericardial space. ठीक है. हार्ट में आप देखिए तीन स्पेशल लेयर हो गई. एक आउटरमोस्ट लेयर जिसका बोला जाएगा इपिकार्डियम, दिस इज इपिकार्डियम. उसके बाद मिडल मोस्ट लेयर जिसको बोला गया मायोकार्डियम, और इनर मोस्ट लेयर जिसको बोला गया है एंडोकार्डियम. So these three special layer helps to prepare a covering around heart and you call that covering as pericardium. Now in between these two layers, there is a space called pericardial space in which a fluid is present. You call that fluid as pericardial fluid, which is up to 50 ml. जो कितना रहता है? 50 ml pericardial fluid है, viscous jelly fluid है. Now what is the role of that viscous jelly fluid? वो जो viscous jelly fluid अंदर available है, उसका रोल क्या है? It acts as shock absorber and protects the heart from mechanical shocks. अंदरूनी या एक्सटर्नली जो भी शॉक्स, जर्क लगते हैं, उस जर्क से हार्ट को बचाएगा. अदरवाइज देयर मे बी चांसेस ऑफ डेथ. इवन इट प्रिवेंट्स फ्रिक्शन बिटवीन टू पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन. दो पेरिकार्डियल मेम्ब्रेन के बीच में फ्रिक्शन से भी हार्ट को बचाता है, सो दैट ऑलवेज द हार्ट वर्क इन फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन फिनोमिना में हार्ट का वर्किंग जो है कंटिन्यू होता है. दीज आर द डिटेल्स रिगार्डिंग पेरिकार्डियम. नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट, external structure of human heart. Come to next point called external structure of human heart, in which you will observe details regarding covering
and internally how the heart is prepared. Come to first topic called external structure, in which we will observe total 4 chambers are there. When you observe heart, total 4 chambers are there. You called upper 2 chambers are smaller in size. These are 2 upper chambers, and these 2 lower chambers, they are bigger in size. These upper chambers are called atria, or you may call auricle, and these lower 2 chambers are called as ventricles, which are bigger in size. तो इस प्रकार हार्ट जो है एक्सटर्नली 4 चेंबर से बना हुआ है, जिसमें आप 2 व्यू देख सकते हो हार्ट के, एक्सटर्नल व्यू भी देख सकते हो और इंटरनल व्यू भी देख सकते हो. यू मे कॉल इट एज एक्सटर्नल व्यू. 2 फॉर्म में है, एक डॉर्सल व्यू एंड यू कॉल्ड वेंट्रल व्यू. फ्रंट साइड से हार्ट का व्यू जो देखने को मिलेगा उसको वेंट्रल व्यू बोला जाएगा, और बैक साइड से हार्ट का जो व्यू देखने को मिलेगा उसको डॉर्सल व्यू बोला जाएगा. तो इस प्रकार 2 व्यूज आर ऑब्जर्व्ड इजीली व्हेन यू ऑब्जर्व ह्यूमन हार्ट. नाउ when you observe this heart, 4 chambers are there, so that you may call it 4 chambered heart. And mammalian heart is always 4 chambered. Namely, you called atria. 2 atria are there and 2 ventricles are there. Particularly, the atria are present anteriorly, while ventricles are situated posteriorly. इसका मतलब ऑरिकल्स जो है, एट्रिया जो है, ये हमेशा अपर साइड में रहेंगे और वेंट्रिकल जो है हमेशा लोअर साइड में रहेंगे. इसलिए अपर जो एट्रिया है, अपर जो ऑरिकल्स है, इनको हमेशा बोला जाता है, दे आर कॉल्ड एज रिसीविंग चेंबर, बिकॉज ब्लड कम्स हियर फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ आवर बॉडी. और वेंट्रिकल्स को बोला जाता है डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर, बिकॉज वेंट्रिकल प्रोवाइड्स ब्लड टू होल बॉडी. इसलिए हमेशा ऑरिकल को एंटीरियर बोला गया है और वेंट्रिकल को पोस्टीरियर बोला गया है. एक्सटर्नली अब ये 2 जो ऑरिकल हैं, here you will observe this is one auricle and this is second auricle. You called one auricle as left auricle and one auricle as right auricle. Is it clear? Externally 2 auricles are separated from ventricle by transverse groove. 2 auricle जो है ventricle से separate किए हुए हैं एक groove के through, and you call that groove as coronary sulcus. Now observe this labeling. This is called coronary sulcus. जो ऑरिकल और वेंट्रिकल को क्या किया है, डिस्टिंग्विश किया है. ऑरिकल और वेंट्रिकल इसी एरिया से, इसी रीजन से डिस्टिंग्विश होता है कि ऑरिकल का एंड हो गया है, अब यहाँ से इसके नीचे से क्या चालू हो जाएगा, वेंट्रिकल चालू हो जाएगा. एंड यू कॉल दैट सल्कस, और जंक्शन पॉइंट इज कॉल्ड कोरोनरी सल्कस. व्हाइल एक्सटर्नली 2 वेंट्रिकल्स आर सेपरेटेड फ्रॉम ईच अदर. उसी प्रकार 2 वेंट्रिकल भी क्या हुए, सेपरेट हुए हैं, जिससे लेफ्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को अपन आसानी से क्या कर सके, डिस्टिंग्विश कर सके. Is it clear? And you call that sulcus as coronary. You call it interventricular groove. और उसको क्या बोला गया है, externally 2 ventricles are separated from each other by an oblique longitudinal interventricular groove. जिसको क्या नाम दिया गया है, interventricular groove. So that 2 ventricles are separated. जिसके थ्रू क्या सेपरेट हो गए, 2 ventricles सेपरेट हो गए. Now each auricle is produced into a process in front of respective ventricle called auricular appendix. ऑरिकल डेवलप तो हो गया है अपर साइड में, लेकिन वो प्रोड्यूस कर रहा है एक फ्रंट साइड में बराबर अपने अपने रेस्पेक्टिव वेंट्रिकल की तरफ. इसका मतलब राइट ऑरिकल ओपन होगा राइट वेंट्रिकल में और लेफ्ट ऑरिकल ओपन होगा लेफ्ट वेंट्रिकल में. That's why you call that processes as auricular appendix. When you observe the details of this sulcus, यहाँ देखिए आप कोरोनरी सल्कस जो है उसी के ऊपर में आर्टरीज रन हो रही है और वेन्स रन हो रही है. क्या रन हो रही है उसके ऊपर, आर्टरीज और वेन्स. यू कॉल्ड इट कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन्स आर प्रेजेंट इन इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव. इंटरवेंट्रिकुलर ग्रूव के ऊपर में 2 स्पेशल आर्टरीज और वेन्स रन हो रही है. यू कॉल्ड इट कोरोनरी आर्टरी एंड कोरोनरी वेन. The coronary artery supplies oxygenated blood. Now make it important. यहाँ स्टूडेंट गड़बड़ करता है. Coronary artery supplies oxygenated blood to heart, while coronary vein collects deoxygenated blood from heart. Coronary vein का फंक्शन अलग है, coronary artery का फंक्शन अलग है, और इन्हीं आर्टरी और वेन के थ्रू ब्लड का पंपिंग अगर बराबर ना हो पाए तो देयर में बी चांसेस ऑफ हार्ट अटैक. ठीक है, क्योंकि हार्ट को ऑक्सीजन चाहिए, हार्ट हमेशा मॉइस्ट रहना चाहिए,
उसके लिए कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन जो है दे वर्क. नाउ व्हेन यू ऑब्जर्व दिस टू अपर चेंबर, जिसको अपन ने रिसीविंग चेंबर बोले थे, दीज ऑरिकल्स आर ऑलवेज थिन वॉल्ड. ठीक है, जबकि वेंटिकल्स जो है दे आर ऑलवेज थिक वॉल्ड. इनका जो वॉल है वो हमेशा थिक रहेगा क्योंकि डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर कहलाता है. जबकि ऑरिकल जो है हमेशा थीन है, इसलिए ये हमेशा रिसीविंग चेंबर कहलाता है. इवन ऑरिकल्स आर स्मॉलर while ventricles are larger. ठीक है, एंड दे मेक्स द ब्लड टू फ्लो, और इन्हीं की बदौलत पूरे बॉडी में ब्लड जो है फ्लो होता है. दैट्स व्हाई यू कॉल्ड हार्ट एज पंपिंग ऑर्गन, हार्ट एज मस्कुलर ऑर्गन विच ऑलवेज वांट टू कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स, जो हमेशा हार्ट को क्या करता है, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता है. इज इट क्लियर? नाउ कम टू नेक्स्ट पॉइंट. ऑलरेडी वी हैव डिसाइडेड 4 चेंबर्स आर देयर. ऑरिकल्स भी डिस्कस किए अपन ने, वेंट्रिकल्स भी डिस्कस किए, रिसीविंग चेंबर भी हो गया, डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर भी हो गया, थिन वॉल्ड है, थिक वॉल्ड है, वी हैव डिस्कस्ड इट. नाउ कम टू राइट ऑरिकल रिसीव्स डीऑक्सीनेटेड ब्लड फ्रॉम टू मेजर वेन. राइट ऑरिकल जो है वो ब्लड रिसीव कर रहा है. कौन सा ब्लड रिसीव कर रहा है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड. मीन्स ए ब्लड which has no oxygen, a blood which has only CO2. That blood is collected in right auricle with the help of two major vein, and you call that vein as superior vena cava and inferior vena cava. Superior vena cava brings blood from head region, means upper region, and inferior vena cava brings blood from different body region below the chest, except from lungs and heart itself. Left auricle receives oxygenated blood from lungs through 4 pulmonary veins, 2 from each lungs opening dorsally to left auricle. Then we have discussed regarding ventricle. वेंट्रिकल डिस्ट्रीब्यूटिंग चेंबर है, ये अपन डिस्कस कर चुके हैं. और राइट वेंट्रिकल पंप कर रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड. किसको दे रहा है डीऑक्सीनेटेड ब्लड? पल्मोनरी एओर्टा को दे रहा है. और वो पल्मोनरी एओर्टा उस डीऑक्सीनेटेड ब्लड को किसको प्रोवाइड करेगा? लंग्स को. उसी प्रकार लेफ्ट वेंट्रिकल जो है पंप द ब्लड which is oxygenated into systemic aorta, and the duty of systemic aorta is to distribute that blood to all parts of our body. ठीक है. नाउ ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली. ये देखिए हार्ट पूरा प्रिपेयर है, और हार्ट की सरफेस के ऊपर में एक्सटर्नली कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन जो है पूरा ब्लड सप्लाई कर रहा है हार्ट के कवर को, हार्ट की सरफेस को, सो दैट ऑलवेज हार्ट गेट मॉइस्ट. अगर इसका सप्लाई बराबर नहीं हो पाया तो देयर इज चांसेस ऑफ हार्ट अटैक. तो कोरोनरी आर्टरी और कोरोनरी वेन की जवाबदारी है कि वो पूरे हार्ट को मॉइस्ट रखता है, पूरे हार्ट को वर्किंग करने बोलता है. और ये फिनोमिना जो है आपको हार्ट की डॉर्सल व्यू में भी मिलेगी और हार्ट की वेंट्रल व्यू में भी ये फिनोमिना जो है आपको देखने को मिलेगी. So that blood supply to the heart. The blood vessels are present on surface of ventricle. You call it the coronary artery and coronary veins. Two coronary arteries arise from base of aorta. Aorta के base से, देखिए ये aorta था, ये aorta के base से coronary artery arise हुई है. Is it clear? Even उसने branches भी बनाया coronary artery ने, देखिए branches भी बनाया. एक राइट कोरोनरी आर्टरी सप्लाई हुई और इधर से देखिए लेफ्ट कोरोनरी आर्टरी जो है सप्लाई हो रही है. ठीक है. द लेफ्ट एंड राइट कोरोनरी आर्टरीज विच सप्लाई ऑक्सीडेटेड ब्लड टू द मसल्स ऑफ हार्ट, एंड दिस कोरोनरी आर्टरी इज ऑब्जर्व्ड ऑन वेंट्रल साइड. नाउ कोरोनरी वेन कलेक्ट डीऑक्सीडेटेड ब्लड फ्रॉम हार्ट मसल्स. पूरे हार्ट की सरफेस में जितना भी डीऑक्सीडेटेड ब्लड है उसको कलेक्ट करने की जवाबदारी किसकी है? कोरोनरी वेन की. And collect to form the main coronary vein called coronary sinus and opens into right auricle. और वो भी कहाँ ओपन होगा? राइट ऑरिकल में ओपन होता है. एंड इट इज ऑब्जर्व्ड फ्रॉम डॉर्सल साइड ऑफ ह्यूमन हार्ट. और कहाँ से ऑब्जर्व करने को मिलेगा आपको? डॉर्सल साइड से. नाउ कम टू बेसिक पॉइंट्स रिगार्डिंग एम्ब्रियोनिक कनेक्शन. ये भी एमसीक्यूज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और स्टूडेंट जो है जनरली ये सब टॉपिक जो है ध्यान में नहीं रखता.
So be careful regarding a topic called embryonic connection. What do you mean by embryonic connection? Embryonic connection means जैसे ही बेबी बॉर्न हुआ, या आप शुरुआत कीजिए वो बेबी का, वो बेबी से शुरुआत कीजिए जो बेबी अभी फिलहाल डेवलप हो रहा है। प्रेगनेंसी के दौरान फीमेल मदर में अपनी डेवलपमेंट ले रहा है, आइदर 3 मंथ्स का है, 6 मंथ्स का है, 7 मंथ्स का है। उस समय से बेबी जब बॉर्न हो जाता है उस समय तक उसमें क्या क्या चेंजेस आते हैं, दैट यू वांट टू स्टडी अंडर एम्ब्रियोनिक कनेक्शन। व्हेन यू ऑब्जर्व द पल्मोनरी ट्रंक एंड सिस्टमिक एओर्टा, इसका मतलब यहाँ देखिए आप ध्यान से, यहाँ पर आपको एओर्टा भी दिख रहा है रेडिश कलर का, और पल्मोनरी ट्रंक भी दिख रहा है, ठीक है, जो ब्लूइश कलर का। दिस पल्मोनरी ट्रंक विच यू कॉल्ड पल्मोनरी आर्टरी and systemic aorta which you called aorta are connected by ligamentum arteriosum। वो कैसे कनेक्टेड है, जुड़े हुए हैं, लिगामेंटम आर्टेरियोजम से जुड़े हुए हैं। अभी लिगामेंटम आर्टेरियोजम जो है क्या है, ऑब्जर्व दिस डायग्राम केयरफुली। ये दोनों ट्यूब्स जो पूरे बॉडी में पूरे ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल रहा है, पूरे ब्लड को हार्ट से बाहर निकाल रहा है, जिसमें एक ट्यूब जो है ऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकाली है और एक ट्यूब जो है डीऑक्सीनेटेड ब्लड बाहर निकाली है। बोथ दिस ट्यूब दे आर जॉइंड, दिस जंक्शन पॉइंट जिसमें दोनों ट्यूब जो है एक प्रकार की वेल्डिंग के द्वारा, एक प्रकार का वेल्ड किया हुआ है मसल्स को, उसको बोला गया लिगामेंटम आर्टेरियोजम। इट इज द रेमनेंट ऑफ डक्टस आर्टेरियोसस, ए ब्लड वेसल which used to bypass the blood to the heart in fetus as the lungs are not functioning till the child is born। ठीक है, फीटस फॉर्म में जब बच्चा जन्म नहीं लेता, प्रेगनेंसी के दौरान बच्चे की ग्रोथ हो रही है, डेवलपमेंट हो रही है, उस समय ये लिगामेंटम आर्टेरियोजम के द्वारा थोड़ा बहुत ऑक्सीजन भी बच्चों को प्रोवाइड किया जाता है, क्योंकि उस समय उस समय बेबी के लंग्स का फंक्शनिंग जो है बराबर नहीं है। लेकिन जैसे ही आफ्टर बर्थ वंस द लंग स्टार्ट फंक्शनिंग, इट स्टार्ट्स टू क्लोज एंड इज कंप्लीटली क्लोज बाय सेकंड मंथ, that represent the remnant of embryonic connection between two blood vessels। This clears your external structure of human heart, जो आपको डिटेल्स बताएगा external structure of human heart। Now read the whole text from your textbook। पूरा मटेरियल जो है, पूरी थ्योरी जो है आप बराबर टेक्स्ट बुक से रेफर कीजिए, जिसमें डिटेल्स मिलेगा आपको स्ट्रक्चर एंड पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट में, particularly location, shape, size, weight, heart की wall which you call pericardium, and external structure in brief। In next topic we will study regarding internal structure of human heart। Thank you।